So hello everyone and a very good evening to all of you. Welcome back once again to the session of Indian Polity. In today's session guys, we are going to discuss about all the provisions with respect to the President of India. आज के सेशन में हम बात करेंगे जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं विद रिस्पेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड नाउ वी हैव स्टार्टेड विद द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव. जो जो हमारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में जितनी भी चीज़ें आती हैं दैट वी विल डिस्कस, विच मीन्स we will discuss आर्टिकल नंबर 52 टू आर्टिकल नंबर 78. ठीक है, तो अब जो भी आगे 78 तक हम आर्टिकल पढ़ेंगे वो किससे रिलेटेड है? सारे सेंट्रल एग्जीक्यूटिव से. इन टुडे सेशन वी विल डिस्कस अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. एंड गाइज एज यूजुअली सेशन काफ़ी मज़ेदार होने वाला है बिकॉज यू विल गेट टू नो कि हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड. दैट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ टुडे सेशन, क्योंकि जनरली हमें ये पता होता है कि दैट द प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. द सिस्टम इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बट वी डू नॉट नो कि कैसे. तो वो कैसे आज हम जानेंगे. ओके, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन गाइज एंड लेट्स टॉक अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. सो गाइज एज यू ऑल नो द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. हमारे देश के जो पहले यू कैन से जो सबसे हेड पर्सन है वो कौन है? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. बट at the same time we all know that president is not the real executive authority in the country. हमारे देश में real executive authority कौन है? council of ministers headed by the prime minister. हमारे देश की real executive authority कौन है? who is the real executive authority? it is council of minister headed by the prime minister. ठीक है, but एक बात याद रखना, central executive, ठीक है, central executive में कौन कौन आते हैं? central executive consist of president. It consists of council of ministers headed by prime minister. So of course prime minister is also a part. ठीक है, and then we have attorney general of India, AGI, attorney general of India. ये चार लोग होते हैं. These four people are the part of central executive. And please do remember here that vice president is not a part of central executive. These four are the part of central executive. One is president, two council of ministers, 3 prime minister and 4th attorney general of India. Okay, so now अब वापस आ जाते हैं प्रेसिडेंट पे. So president guys is the head of the state and all the decisions, all the executive actions at the center is expressed to be taken in his name. But president always works on the advice of the council of minister headed by the prime minister, and that is why it is rightly said that president of India is not a real executive authority. In India, the real executive authority is council of ministers headed by the prime minister. Okay, so let's move ahead to the various provisions related to the president of India. First of all, let's talk about the eligibility to become a president. Who can become a president in the country? So article 58 guys deals with this provision. Article 58 of the Constitution of India says that a person who wants to be a president should be a citizen of India, should have 35 years or above age. उसकी जो एज है वो 35 साल से ज़्यादा होनी चाहिए. He or she should be qualified to become a member of लोक सभा. ठीक है, लोकसभा का मेंबर बनने की क्वालिफिकेशन उनके पास होनी चाहिए. And then of course he should not hold any office of profit under union government, state government or any other public authority. ये चार चीज़ें अगर किसी पर्सन के पास है then he can fight elections, he can contest elections, not fight is quite negative word. He can contest elections for the president of India. Okay, now in this point do remember the sitting president, the sitting president, the sitting vice president, the sitting union ministers, the sitting union ministers, the sitting minister of any state. All these people are eligible to become a president because they do not hold any office of profit. ठीक है, with respect to this point I'm talking about. All these posts, all these offices do not hold any office of profit. So उनके लिए ये वाला जो point है ये valid अपने आप automatically हो जाता है. ठीक है, so these are the 4 eligibility conditions to become a president under article number 58, and please do remember article number also. Alright, now moving ahead to electoral college. Now first of all, who can vote in presidential election? Presidential election में कौन वोट कर सकता है? अगला सवाल हमारा ये है. There are three category of people who can vote in presidential election. Number one,
the elected members of both the houses of the parliament. Now please focus on the word elected members. Now you should know that there are 12 nominated members in Rajya Sabha. ठीक है, before 2019 there were 2 nominated members in Lok Sabha also, but एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके वो जो 2 नॉमिनेटेड सीट्स थी लोकसभा में वो हटा दी गई थी. सो करेंटली देर आर नॉमिनेटेड मेंबर्स इन राज्यसभा ओनली. ठीक है, 12 nominated members are there in Rajya Sabha, and these 12 nominated members cannot vote. They cannot vote for during the elections of president. ठीक है, only the elected members of both the houses of the parliament. Then elected members of legislative assemblies of state. Elected members of legislative assemblies of state. ठीक है जी. अब यहाँ पे you should focus on these 2 words again. Elected members only, not the nominated members, and only from the legislative assemblies. ठीक है, there are certain states which have legislative councils also. So the member of legislative councils are not eligible to vote in the presidential election. Legislative council के लोग वोट नहीं कर सकते. There are 6 states in India which have legislative council. उनके कौन कौन से 6 states हैं एक बार याद करने की कोशिश करते हैं. One is आंध्र प्रदेश, then it is महाराष्ट्र. इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा. आई डोंट नो मेरे को भी याद है कि नहीं, बट लेट्स ट्राई टू रिमेंबर. आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, देन वी हैव तेलंगाना, देन वी हैव बिहार, देन वी हैव कर्नाटका, then we have UP. So these are the 6 states where we have legislative councils along with legislative assembly. तो है ही, साथ में legislative council भी है. So the member of legislative council cannot vote in the presidential election. Then elected members of legislative assemblies of UTs of Delhi and Puducherry, because you all know union territories of Delhi and Puducherry have their own legislative assemblies. So the elected members of these 2 union territories are also eligible to participate in the presidential election. But here of course this definitely will change once we have the legislative assembly of Jammu and Kashmir, because it is now a union territory. So उसका जो legislative assembly बनेगा उसके भी लोग participate करेंगे, but अभी तक कोई updation नहीं है. So we will consider this only. alright, तो उसकी जब legislative assembly बनेगी और अगले presidential election से पहले अगर बन जाती है then definitely देखने को मिलेगा हमें कि वो लोग भी पार्टिसिपेट करेंगे. नहीं बनती है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है. सो दीज आर द 3 सेट ऑफ कैटेगरी ऑफ पीपल विच कैन पार्टिसिपेट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. यहाँ पे याद रखना दैट नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ आइदर हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट कैन नॉट पार्टिसिपेट. नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज कैन नॉट पार्टिसिपेट. नॉमिनेटेड और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स कैन नॉट पार्टिसिपेट. एंड यूटीज में दिल्ली और पुडुचेरी के पार्टिसिपेट कर सकते हैं. मूविंग अहेड to the values of votes. Now these are the 2 formula to determine the values of votes of an MLA, of an MP. MLA की अगर बात करें तो total population of state, whatever be the total population of states divided by total number of elected members in the state legislative assembly, divided by total number of elected members in the state legislative assemblies. Do focus on this word, elected members only, not nominated, into 1/1000. This is the value of vote of an MLA. ठीक है, लेट्स से कि किसी स्टेट की पॉपुलेशन है 1 लाख. 1 लाख इज द पॉपुलेशन, एंड लेट्स से देयर आर 200 सीट्स. लेट्स से देयर आर 200 इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इनटू 1/1000. सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए. तो ये कितना हो जाएगा, ये कट जाएंगे, ये कट जाएगा 1/2. 1/2 0.5 विल बी द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए. ठीक है, दिस इज ऑफ कोर्स इज एन एग्जाम्पल. ये वैल्यू और भी ज्यादा होती है बिकॉज 1 लाख तो किसी भी स्टेट की पॉपुलेशन नहीं है हमारे देश में. नाउ वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमपी. एमपी की क्या, एमपी के वोट की क्या वैल्यू होती है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एंड अगेन प्लीज फोकस इन दिस वर्ड, ऑन दिस वर्ड इलेक्टेड मेंबर्स. यहाँ पे सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स है, नॉमिनेटेड मेंबर्स की बात अगेन नहीं हो रही है. नाउ if a person wants to become a president, he has to secure the quota. ठीक है जी, कम से कम कोटा के बराबर उनको वोट लेने पड़ेंगे. only then he or she can become the president. And what is the formula of electoral quota? That is total number of valid votes polled. Now valid votes का यहाँ पे बार बार जिक्र हो रहा है. what is the meaning of valid votes here? क्या कुछ ऐसे वोट्स होते हैं जो कि इनवैलिड होते हैं? yes, let's say कि see
द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज कंडक्टेड विद द हेल्प ऑफ बैलेट पेपर, ठीक है, वो बैलेट पेपर से होता है, ईवीएम नहीं होती वहाँ पे। नाउ लेट्स से कि आपको एक बैलेट पेपर मिला, ठीक है, उसमें दो लोग खड़े हुए हैं, ए और बी, आपने इसको फाइल पहली दी प्रेफरेंस, इसको दूसरी दी, बट जब आपने उसको बैलेट बॉक्स में डाला तो वो पेपर फट गया या कुछ और हो गया, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। सो इन दैट केस दिस वोट विल बी काउंटेड एज इनवैलिड। ऐसा हुआ था, मुलायम सिंह का वोट जो था वो इनवैलिड करार हुआ था वाइल जब प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बने थे, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है, और भी कई चीजें हो सकती हैं, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ valid votes polled divided by 1 plus 1. Now what is this 1 plus 1? This one, guys, is the number of vacancy, whatever be the number of vacancy. This formula for quota, guys, is very common across the countries, बहुत सारे देशों में ये वाला formula use होता है. So actually the formula is total number of valid votes polled divided by number of vacancies plus 1 and then 1 more plus 1. So here in this case the presidential the vacancy of president is 1 only, so that's why we are taking 1 here. So total number of valid votes polled divided by number of vacancy which is 1 plus 1, तो 2 हो जाते हैं plus 1, ठीक है। So let's say कि there are total 100 votes which are valid. So what will be the quota then? 100 plus 2 divide 50 plus 1 51. So in this case the person has to secure 51 votes to have the quota and to become the president of India, ठीक है। So this is the value of vote, ये वाली चीज याद रखना, that's very very important. एंड कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस 1 की जगह नंबर ऑफ वैकेंसी लिखा होगा, तो प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। अब यहाँ पे आपको पता चल गया है इस पहले वाले 1 का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसी। मूविंग अहेड टू द नॉमिनेशन एंड ओथ। सी अब नॉमिनेशन एंड ओथ में क्या क्या चीजें हैं। सी जो भी हमारे प्रेसिडेंट होंगे, जो भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, दैट पर्सन रिक्वायर्स 50 इलेक्टर्स एज प्रपोजर्स एंड 50 इलेक्टर्स एज सेकेंडर्स, मतलब टोटल मिला के 100 लोगों को। एंड दीज इलेक्टर्स एंड प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स शुड बी डिफरेंट पीपल्स। ये जो इलेक्टर्स प्रपोजर्स हैं ये अलग होने चाहिए 50 और सेकेंडर्स अलग 50 होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं है कि यही प्रपोजर है और यही सेकेंडर्स है, दिस इज नॉट पॉसिबल। दीज सेट ऑफ पीपल्स आर डिफरेंट, प्रपोजर्स एंड सेकेंडर्स, दीज सेट ऑफ 50-50 पीपल्स आर डिफरेंट, ठीक है। नाउ as per the Presidential Election Act, Presidential Election Act of 1952, Presidential Election Act 1952 में the number of proposers and number of seconders was 2 only, 2 each, ठीक है। तो दो प्रपोजर चाहिए थे, 2 सेकेंडर चाहिए थे। तो इससे होता क्या था कि जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स हैं वो भी आ जाते थे, क्योंकि 4 लोगों को जानना इज वेरी इजी। तो इस नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को रिमूव करने के लिए इसमें अमेंडमेंट्स हुए बार बार, ठीक है। एंड लास्ट जो अमेंडमेंट हुआ है इसमें हुआ है 1997 में। द लास्ट अमेंडमेंट इन दिस एक्ट वाज इन 1997 वेयर द नंबर ऑफ प्रपोजर्स एंड नंबर ऑफ सेकेंडर्स वाज इंक्रीज टू 50 ईच, ठीक है। नंबर ऑफ प्रपोजर्स और सेकेंडर्स कितने कर दिए, 50 कर दिए थ्रू द 1997 अमेंडमेंट। और राइट, इससे पहले 77 में भी अमेंड हुआ था, 74 में भी हुआ था, तो धीरे धीरे बढ़ रहा था। बट इन द ईयर 1997 the government decided to increase the number of proposers and seconders to 50 each, alright, to eliminate the non serious candidates. in fact कभी कभी तो ऐसा होता था कि कुछ लोगों को 0 वोट पड़ जाते थे, so इसका कोई मतलब ही नहीं है। now each candidate has to make a security deposit of rupees 15,000 with the Reserve Bank of India, and of course the security deposit is liable to be forfeited in case the candidate is not able to secure 1/6 of the total valid votes polled. अगर उसको टोटल वैलिड वोट पोल्ड का 1/6 नहीं मिलता है तो ये वाली जो सिक्योरिटी है ये फॉरफिटेड हो जाती है, ठीक है। एंड देन टॉकिंग अबाउट ओथ, सो आर्टिकल 60 टॉक्स अबाउट द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो ओथ टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड इन हिज एब्सेंस the senior most judge available in the Supreme Court, ठीक है। So it is administered by Chief Justice of India, and in his absence the senior most judge of the Supreme Court available will administer the oath to the office of President of India, ठीक है। And this provision is dealt by Article 60 of the Constitution of India. Do remember this article, article number 60, all right। Now let's talk about the election method. What is the election method? क्या क्या election method है? So first of all the system is indirect. The president is
इलेक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है, द इलेक्शंस आर कंडक्टेड इनडायरेक्टली, ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्सल रेंट सफराज वाली जो प्रिंसिपल है वो एप्लीकेबल नहीं है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्शंस आर इनडायरेक्ट. देन नंबर 2, सिस्टम. व्हाट इज द सिस्टम? सिस्टम ऑफ proportional representation. System of proportional representation by means of system of proportional representation by means of single transferable vote. ठीक है, तो ये आपने कई बार हर एक किताबों में पढ़ा होगा, बट इसका मतलब क्या है वो समझना जरूरी है. ठीक है, सो इलेक्शंस आर कंडक्टेड इनडायरेक्टली एंड द सिस्टम इज नोन एज सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. नाउ इसका मतलब समझ लेते हैं अब. सो लेट्स से देयर आर 4 कैंडिडेट्स. ठीक है, मान लेते हैं कि 4 कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हुए हैं. ठीक है, ए बी सी एंड डी. ठीक है, एंड लेट्स से देयर आर टोटल वैलिड वोट कितने हैं? 100 हैं. टू मेक दी अंडरस्टैंडिंग इजी, लेट्स कंसिडर दैट देयर आर 100 वैलिड वोट्स पोल्ड. तो टोटल वोट 100 हैं. नाउ इन दी जब मैं वोट करने जाऊंगा तो व्हाट हैपेंस इज, मैं ऐसा नहीं होता है कि लेट्स से कि मेरे पास बैलेट पेपर आया एंड देयर आर 4 नेम्स ए बी सी डी एंड आई वोटेड इन फेवर ऑफ सी. ऐसा नहीं होता है इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. वी हैव टू गिव प्रेफरेंस. द पर्सन हु इज वोटिंग फॉर द इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हैज टू गिव preference to all the candidates. Let's say there are 4 candidates A, B, C and D and I am voting for them. So मैं प्रेफरेंस दूंगा. तो ठीक है, मान लो कि पहले मैं चाहता हूँ कि C बने प्रेसिडेंट, तो मेरी पहली प्रेफरेंस होगी C. एंड देन अगर C नहीं बनता है तो लेट्स से चलो B बन जाएगा, कोई बात नहीं. B भी नहीं बनता है तो चलो मैंने कहा कि ठीक है मैं A से भी काम चला लूंगा, और फिर कुछ नहीं बचेगा, A भी नहीं बन पाएगा तो ठीक है चलो फिर D भी ठीक है, कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट ही तो बनाना है. सो दिस इज हाउ अ पर्सन वोट्स. इस तरीके से वोटिंग होती है इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जो नॉर्मल इलेक्शंस में होता है कि हम जाते हैं और किसी भी कैंडिडेट के आगे का बटन दबाते हैं एंड 1 वोट इज काउंटेड. दिस इज नॉट द वे. प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है. ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट? प्रेफरेंशियल वोटिंग. प्रेफरेंशियल वोटिंग इज कंडक्टेड इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ठीक है, तो ए बी सी डी 4 बंदे थे और ये प्रेफरेंस उनको मिल गई. ठीक है, नाउ लेट्स से कि पूरी वोटिंग हो जाने के बाद जब काउंटिंग हुई, फर्स्ट राउंड की काउंटिंग में हमें ये पता चला दैट ए बी सी एंड डी, लेट्स से कि ए हैज गॉट 40 वोट्स, बी हैज गॉट 30, सी हैज गॉट 20 एंड डी हैज गॉट 10. नाउ दिस 40, 30, 20 एंड 10 आर द फर्स्ट प्रेफरेंसेस टू ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली. ठीक है, ऐसा नहीं है कि 100 में से 40 वोट ए को मिले, 30 वोट बी को मिले, ऐसा तो है ही नहीं. ठीक है, दिस 40, 30, 20 एंड 10 आर दी फर्स्ट प्रेफरेंसेस गिवन टू ए बी सी एंड डी रिस्पेक्टिवली. ठीक है जी, यहां तक क्लियर है? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं. दिस 40, दिस 30, दिस 20, दिस 10 आर दी फर्स्ट प्रेफरेंसेस गिवन टू ए बी सी एंड डी. ठीक है, 40 लोग ऐसे थे जिन्होंने ए को पहला प्रेफरेंस दिया 40 वोट्स में. 40 वोट्स में 100 में से 40 वोट में आउट ऑफ 100 40 वोट्स हैव गिवन दी फर्स्ट प्रेफरेंस टू ए, 30 पीपल गिवन दी फर्स्ट प्रेफरेंस टू बी, 20 ने सी को दिया एंड 10 ने दिया डी को. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट राउंड काउंटिंग. दिस इज द फर्स्ट राउंड काउंटिंग. ये पहले राउंड की काउंटिंग में ऐसा निकल के आया. सो इफ देयर आर 100 वैलिड वोट्स देन व्हाट शुड बी द कोटा? देन कोटा शुड बी 51 और नॉट? कोटा कितना होना चाहिए? 51 होना चाहिए इफ देयर आर 100 वैलिड वोट्स. ऑलराइट, 100 वैलिड वोट्स के हिसाब से कोटा कितना होगा? 51. सो द पर्सन हैज टू सिक्योर at least 51 votes to become the president, but here यहाँ तो नहीं मिला किसी को भी 51. So what will happen in that case? So after this the second round counting will be conducted. इसके बाद क्या होगी? सेकेंड राउंड की काउंटिंग होगी. तो सेकेंड राउंड की काउंटिंग में कैसे होगा, क्या होगा, ये जरा समझना ध्यान से. नाउ अब देखो सेकेंड राउंड की काउंटिंग में जिसके पास सबसे कम प्रेफरेंस मिली होंगी, तो सबसे कम किसको मिली है? डी को. इसके वोट्स होंगे ट्रांसफर. ठीक है, हमने पढ़ा था ना बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. इसके वोट ए बी और सी को ट्रांसफर हो जाएंगे. अब कैसे ट्रांसफर हो जाएंगे भाई? 10 वोट हैं तो कैसे ट्रांसफर होंगे? व्हाट इज दी मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग दी वोट्स? तो वो समझ लो. लेट्स से डी के पास कितने वोट्स हैं? 10 वोट्स हैं. ठीक है, अब ये जो 10 हैं ये वो लोग हैं जिन्होंने डी को पहली प्रेफरेंस दी थी. ऑलराइट, दिस नंबर 10 रिप्रेजेंट्स द पीपल who have given first preference to D. Alright, ये अभी हमने पढ़ा था. D को 10 लोगों ने पहली प्रेफरेंस दी. नाउ अब जिन्होंने D को पहली प्रेफरेंस दी होगी उन्होंने A, B और C में से किसी ना किसी को सेकंड प्रेफरेंस तो डेफिनेटली दी होगी.
तो सेकंड प्रेफरेंस वाले मान लेते हैं जो ये डी थे, जो 10 बैलेट पेपर्स थे, इनमें लिखा हुआ होगा कि ओके डी को तो सबने दिया, चलो पहला प्रेफरेंस, पर ए बी सी को भी दिया होगा। लेट्स से ए बी और सी, मान लेते हैं कि बी को 6 लोगों ने दिया, ए को 2 लोगों ने दिया सेकंड प्रेफरेंस, और सी को कितनों ने दिया, 2 लोगों ने दिया। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हम बी को जिताना चाहते हैं, मतलब ऑफ कोर्स उसमें ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे हम कैलकुलेशंस ऐसे ही करेंगे कि बी जीत जाए। तो बी को दिए 6 लोगों ने, ए को दिया सेकंड प्रेफरेंस 2 लोगों ने, और सी को दिया 2 लोगों ने। नाउ व्हाट विल हैपन, these votes will be transferred to A, B and C. These two section 2 votes will be transferred to A, B and C. These second preferences, जो ये 10 लोगों के second preferences है, वो इस according transfer हो जाएंगे किसको, A, B, C को। And now A will have 40 plus 2 which means 42 votes, B will have 30 plus 6 which means 36 votes, and C will have 20 plus 2 which means 22 votes. ठीक है, तो आफ्टर द सेकेंड राउंड काउंटिंग बी इज हैविंग 42, सी इज हैविंग 36 एंड सॉरी बी इज हैविंग 36, सी इज हैविंग 22 वोट्स। ऑलराइट, बट स्टिल अभी तक भी जो कोटा है वो अचीव नहीं हुआ है, बिकॉज कोटा इज अचीव्ड एट 51, अभी भी कोटा अचीव नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, थर्ड राउंड की काउंटिंग होगी। एंड रिमेंबर इंडिया में अभी तक थर्ड राउंड काउंटिंग की जरूरत नहीं पड़ी है, सेकेंड राउंड तक ही रिजल्ट आ गया है। सो 42, 36 एंड 22 are now the votes secured by A, B and C after second round। ठीक है जी, तो आई होप गाइज यहाँ तक क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके दोबारा देख लेना। अब आ जाओ थर्ड राउंड की काउंटिंग पे। ये हो गई सेकंड राउंड की काउंटिंग यहाँ तक, ठीक है। ए, बी और सी को कितने मिल गए, 42, 36 और 22। अब होगी थर्ड राउंड की काउंटिंग। तो ए के पास है 42, बी हैज 36 एंड सी हैज 22 वोट्स। ठीक है, ए के पास 42 है, बी के पास 36 और सी के पास 22 वोट्स है। अब होगी थर्ड राउंड की काउंटिंग, और अब इसका बात को आपको ध्यान से समझना है। नाउ अब क्या होता है, जिसके पास सबसे कम वोट्स होते हैं उसके ट्रांसफर होते हैं, तो सी के वोट्स ट्रांसफर होंगे। अब कैसे होंगे जरा ध्यान से समझना, यहाँ पे थोड़ा सा डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। सी के पास वोट्स कैसे थे, 20 + 2। अब ये 20 + 2 क्यों लिख रहा हूं मैं, बिकॉज दीज टू वर दोज जिन्होंने सी को सेकेंड प्रेफरेंस दी थी। ठीक है, जिन्होंने सी को कैसी प्रेफरेंस दी थी, सेकेंड प्रेफरेंस। ये वो दो याद करो, जब डी के पास 10 वोट ट्रांसफर हो रहे थे, तो जिन 10 लोगों ने डी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी थी, उनमें से 2 लोगों ने ए को सेकंड दी थी, 6 को सेकंड दी थी, और 2 लोगों ने सी को सेकंड दी थी। तो ये 2 वही तो हैं जिन्होंने सी को सेकंड प्रेफरेंस दी थी। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, मान लेते हैं तो ये 2 वो हो गए जो जिनकी सी सेकंड प्रेफरेंस है, पर ये 20 वो है जिनकी सी क्या है, फर्स्ट प्रेफरेंस है। तो ये जो 20 लोग हैं इनकी कोई ना कोई सेकंड प्रेफरेंस भी तो होगी। ये जो 20 पीपल जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, उनकी सेकंड प्रेफरेंस भी तो होगी। और सेकंड प्रेफरेंस क्या क्या हो सकती है इनकी, ए, बी और डी को। ए, बी और डी को इन्होंने सेकंड प्रेफरेंस दी होगी। ऑफ कोर्स डी, यानी देखो डी तो बाद में बाहर हुआ है ना, पर वोटिंग तो पहले हो चुकी है। तो मान लेते हैं कि इसको मिले 12, इसको मिले 3 और इसको मिले 5। ठीक है, इसको मिले 12, इसको मिले 3, इसको मिले 5। अब ये क्या है, लेट मी रिपीट दिस, ये क्या है, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग दिस, These are the second preferences to A, B and D, उन लोगों की जिन्होंने C को पहला प्रेफरेंस दिया था। ठीक है, आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन। अब इन 2 वालों पे आ जाओ, ये 2 कौन है, ये 2 लोग वो हैं जिन्होंने C को सेकंड प्रेफरेंस दी थी। ठीक है, तो इन्होंने थर्ड और फोर्थ भी तो दी होगी। थर्ड और फोर्थ किसको दी होगी, ऑफ कोर्स ए और बी को ही तो दी होगी थर्ड और फोर्थ, क्योंकि डी को तो इन्होंने पहली दी थी, सी को सेकंड दी थी, तो थर्ड और फोर्थ भी दी होगी। तो मान लेते हैं थर्ड और फोर्थ, ए ने किसको, ए को एक बंदे ने दी और बी को भी एक बंदे ने दी। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, अब डी तो बाहर हो चुका है, डी तो बाहर हो चुका है। ठीक है, डी तो भाई फर्स्ट राउंड में बाहर हो गया था। तो अब ये जो डी के 3 वोट्स हैं ये तो बेकार हो जाएंगे अगर हम यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अब डी को तो कुछ मिलना ही नहीं है, डी बाहर हो चुका है। अब इन 3 वोट्स को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो डी के फर्स्ट प्रेफरेंस हो गए थे, सेकंड हो गए थे, अब थर्ड और फोर्थ पे आ जाओ। तो ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं कि इन लोगों ने, जो ये 3 बंदे थे जिन्होंने डी को सेकंड प्रेफरेंस दी थी, ये 3 बंदे कौन है, ये 3 बंदे कौन है जिन्होंने सी को फर्स्ट प्रेफरेंस दी, डी को थर्ड सेकंड प्रेफरेंस दी, और मान लेते हैं इनमें से एक बंदा ऐसा था जिसने ए को थर्ड प्रेफरेंस दी और बी को 2 बंदों ने थर्ड प्रेफरेंस दी। ठीक है, समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है, ध्यान से धीरे धीरे करके समझो। एक चेन है, बस चेन बनाते चले जाओगे समझ में आ जाएगा।
मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सी को 20 लोगों ने पहली प्रेफरेंस दी थी, ये दो वो हैं जिन्होंने डी को पहली दी थी और सी को सेकंड दी थी, ठीक है। ये जो दो लोग हैं उन जिन्होंने सी को सेकंड दी, उन्होंने थर्ड भी दी होगी, थर्ड और फोर्थ दी होगी। तो मान लेते एक बंदे ने ए को दी थर्ड और एक बंदे ने बी को दी थर्ड, ठीक है। अब ये जो 20 है जिन्होंने सी को पहली प्रेफरेंस दी थी, दे मस्ट हैव गिवन सेकंड प्रेफरेंस टू अदर कैंडिडेट्स आल्सो। तो ए बी और डी को दी होगी बिकॉज सी तो ए खुद है। तो ए को मान लेते हैं 5 लोगों ने दी, बी को 12 और डी को 3 लोगों ने, बट डी तो पहली बार हो चुका है। ये जो डी जिन्होंने 3 बंदे जिन्होंने डी को सेकंड प्रेफरेंस दी, उन्होंने थर्ड भी दी होगी। तो मान लेते हैं एक बंदे ने ए को दी थर्ड प्रेफरेंस और 2 बंदों ने बी को दी। अब इन सबको जोड़ दो, अब क्या करो इन सबको जोड़ दो। तो सी बाहर हो गया, ए के पास है 42 और बी के पास है अभी कितने 36। सो आफ्टर दिस थर्ड राउंड काउंटिंग ए के पास कितने, 1 5 ये रहे, एक ये रहा और एक ये रहा, मतलब 5 6 7। सो ए इज हैविंग 49 वोट्स और बी के पास 12 ये हैं प्लस B2 ये हैं और एक वहां पे है। सो B has secured 51 votes and B has become president. So guys, this is how the counting and the election of president is conducted. So I hope guys this is clear. If you have any doubts, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मैं फिर से समझा दूंगा। आई ट्राई कि मैं आपको फिर से किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूं, बट अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट्स। बट आई बिलीव होना नहीं चाहिए बिकॉज बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बट येस थोड़ा सा एक चेन को आपको फॉलो करना है। यू जस्ट हैव टू फॉलो अ चेन, देन इट वुड बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। मूविंग अहेड टू द टर्म्स ऑफ ऑफिस of president. So you all know the president holds office for a period of 5 years. These are very easy things, we would not waste any time on this. He can resign from his office by addressing resignation to vice president. Now here please do not get confused, the oath is administered by CGI but the resignation can be put to the vice president only, ठीक है। He is also liable for election for any number of terms. हमारे देश में कितनी भी बार राष्ट्रपति बना जा सकता है, but in USA a person can be elected as a president only for 2 times, ठीक है। like we had Barack Obama, and the president of India can also be removed from his office by the formal process of impeachment, which is enshrined under article number 61, जो कि किसमें है, आर्टिकल नंबर 61 में उसका पूरा प्रोसेस मेंशन्ड है। ऑलराइट, सो प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है बट बाय द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, एंड टिल डेट देयर इज नो प्रेसिडेंट जो कि इम्पीच हुए हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द impeachment process, and as I already told you, impeachment process is mentioned in article number 61. Please do remember these important articles. मैं सारे articles तो बता भी नहीं रहा, केवल important articles बता रहा हूँ, so please do remember this. So first of all, the president can be removed from his office on the violation of the Constitution of India. If a president is found that he or she is violating the Constitution of India, then on this ground the impeachment process can be initiated against the president. Now impeachment process कहाँ पे initiate होगा, कौन करेगा? Remember, the power of impeachment vests only with the Parliament of India and not any state legislature. किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर नहीं है टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ओनली पार्लियामेंट हैज। सो द इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी इनिशिएटेड इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आफ्टर गिविंग अ 14 days advance notice to the president. This question has been asked so many times that how many days of advance notice should be required to given to president if the impeachment process has to be initiated. So it is 14 days, ठीक है। देन दी चार्ज नोटिस, जो जिस हाउस में भी वो नोटिस इशू हुआ है, जो प्रोसेस है वो इनिशिएट हुआ है, फ्रॉम दैट हाउस द चार्ज नोटिस हैड टू बी साइंड बाय एटलीस्ट 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस. सो इन केस ऑफ लोकसभा 250 by 1/4, in case of राज्यसभा 250 का 1/4 and in case of लोकसभा it is 543 का 1/4. ऑलराइट, वेयर द चार्ज इज इनिशिएटिव. कहीं पे भी अगर मान लो कि राज्यसभा में इनिशिएटिव होता है तो दैट चार्ज नोटिस शुड बी साइंड बाय 1/4 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा, and if it is initiated in Lok Sabha, then again 1/4 of the total membership of Lok Sabha, the charge notice should be signed. Okay. Now, अब क्या होगा? A resolution to impeach the president has to be passed by a special majority under Article 61. Now,
पिछली ही क्लास में जब अमेंडमेंट वाला हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था that there are various types of special majority in the constitution. One is special majority under article 368 that we have discussed. Now this is another type of special majority which is special majority under article 61. So wherever you are writing special majority, please write the name of article also. ठीक है? So if you are writing special majority, so what type of special majority you are talking about? ठीक है? You should write कि आप कौन सी special majority की बात कर रहे हो. Okay? So special majority under article 61 is 2/3 majority of the total numbers of members, मतलब total number of members. Alright, like for example 250 का 2/3, for example 543 का 2/3. That is it. That's very simple to understand. 2/3 of the total membership of the house. Alright. So the resolution has to be passed by this special majority, 2/3 of the total membership house in the house in which the charge has been initiated. ठीक है, जहां पे भी वो चार्ज इनिशिएट हुआ है वहां पे वो पास होगा. आफ्टर दैट the bill to impeach the president will be passed to the other house. Let's say कि लोकसभा में इनिशिएट हुआ था तो फिर वो कहाँ जाएगा? राज्यसभा में. राज्यसभा will investigate the charges and then again in the Rajya Sabha also there is a special majority required. ठीक है, अगर राज्यसभा में पास होना है तो वहां पे भी स्पेशल मेजोरिटी है, मतलब दूसरे हाउस में भी स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए. ओके, the other house investigates the charges that have been made. If the second house also approves the charges, and how will they approve? By special majority only, and this 2/3 of the total membership of that house. The president stands impeached and is deemed, and during this process the president has to right to defend himself or herself through an authorized counsel. ठीक है, and if someone asks you that it is a judicial process, so you would say no, it is a quasi judicial process, semi judicial, or you can say in simple words. ठीक है, so this is how a president can be impeached, but till now there is no president in India जो कि impeach हुए हों. Now moving ahead to the vacancy in office of president. So remember guys, the office of president falls vacant due to any of these 5 reasons. इन पांचों में से कोई भी रीजन हो सकता है. What are these 5 reasons? On expiry of term. On expiry of term, तो मान लेते हैं कि आज कितनी तारीख है? टुडे इज 3 दिसंबर. लेट्स से कि 3 दिसंबर 2021 को प्रेसिडेंट का टर्म खत्म हो रहा है, तो बिफोर द एक्सपायरी ऑफ दिस टर्म द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड. द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म. ठीक है, सो इसीलिए क्या होता है, एंड अगर मान लो कि इन एनी केस इलेक्शन नहीं हो पाता है, इलेक्शन मान लो कि ड्यू टू सर्टेन रीजंस लाइक अभी कोविड था या कोई और भी रीजन है जिसकी वजह से इलेक्शंस अगर नहीं हो पाते हैं, सो व्हाट विल हैपन, द सिटिंग प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू टू रिमेन द प्रेसिडेंट टिल द इलेक्शंस. जो सिटिंग प्रेसिडेंट होंगे वही प्रेसिडेंट रहेंगे जब तक कि इलेक्शन ना हो. एंड दिस प्रोविजन वाज एडेड टू अवॉइड द इंटरिग्नम, मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट की कुर्सी है वो हमारे देश की खाली नहीं रहे, इस चीज को अवॉइड करने के लिए ये प्रोविजन डाला गया था कि अगर elections are not conducted before the expiry of the term, then the sitting president would continue as president till the elections. ठीक है, by death, by resignation, by impeachment and by Supreme Court. Now how Supreme Court can vacate the president's office? By declaring that the election of the president as void. ठीक है, वो उनके इलेक्शंस को void करार दे सकते हैं, null void करार दे सकते हैं, illegal करार दे सकते हैं. तो in that case also the president's office can fall vacant. Now here do remember one thing guys, in all these cases, in all these 4 cases, what will happen, that if the president of office falls vacant, vice president will take the charge. Vice president will take the charge. But in this case क्या होता है, मैंने आपको बता दिया कि एक्सपायरी ऑफ द टर्म तक अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो प्रेसिडेंट जो उस टाइम के सिटिंग प्रेसिडेंट है वही प्रेसिडेंट रहेंगे. ऑलराइट, इन दिस केस ऐसा नहीं होगा कि 3 दिसंबर को खत्म होना था तो 4 अगर इलेक्शंस नहीं हुए तो 4 दिसंबर को वाइस प्रेसिडेंट कुर्सी पे बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा. ठीक है, सो दिस प्रोविजन इज डेल्ट बाय आर्टिकल नंबर 65 which says that the vice president of India will have to discharge the duties if the office falls vacant due to any reason other than the expiry of the term. ठीक है, and if vice president is not there, then this
this duty will be discharged by the Chief Justice of India, and even if CJI is not there, so in that case senior most judge of the Supreme Court, और वो तो होंगे ही. So ऐसा हो चुका है. एक बार हिदायतुल्लाह एक बार हमारे प्रेसिडेंट बने थे जब हमारे प्रेसिडेंट की डेथ हो गई थी, एंड जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने रिजाइन कर दिया था. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड, पावर्स विद रिस्पेक्ट टू बिल्स. अगर प्रेसिडेंट के पास कोई बिल आता है, देन व्हाट प्रेसिडेंट कैन डू? ही कैन डू 3 थिंग्स. 3 में से कोई भी एक चीज वो कर सकते हैं. नंबर 1, गिव हिज असेंट टू बिल. विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल मतलब असेंट दे दे, पहला. दूसरा, वेरी इजी, पहला है असेंट दे दे. दूसरा, असेंट नहीं दे, मना कर दे कि नहीं दूंगा. और तीसरा, रिटर्न द बिल. बिल को क्या कर दे? वापस कर दे. बट द प्रेसिडेंट कैन रिटर्न द बिल इफ इट इज नॉट अ मनी बिल. If it is not a money bill for reconsideration of the parliament. Now why this provision is there? Because money bill is presented with the prior recommendation of the president. ठीक है. तो अगर आपकी रिकमेंडेशन से ही आया है तो फिर आप वापस भेजने को कह नहीं सकते. Alright. So these are the 3 things that a president can do with respect to the bill presented to him after passing in both the houses. Give his assent, withhold his assent and return the bill if it is not a money bill. ठीक है. अब यहाँ पे एक बात और याद रखना कि अगर बिल वापस गया, ठीक है, लेट्स से द प्रेसिडेंट हैज रिटर्न्ड अ बिल फॉर रिकंसिडरेशन एंड विदाउट डूइंग एनी अमेंडमेंट, द पार्लियामेंट अगेन प्रेजेंटेड द सेम बिल इन फ्रंट ऑफ प्रेसिडेंट, देन इन दैट केस द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट. प्रेसिडेंट को फिर अपनी असेंट देनी ही पड़ेगी. सो इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, चाहे अमेंडमेंट करे चाहे ना करे, द प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल. इन दैट केस ही not even withhold his assent. ठीक है, उनको असेंट देना ही पड़ेगा. Now with respect to a bill passed in state legislature, again president has 3 options. Number 1, give his assent to the bill, withhold his assent to the bill. See, president की बात यहाँ पे इसलिए हो रही है because there are certain cases when the governor of a state reserve the bill to be presented in front of president. So in that case president can do any of these 3 things. Give his assent, withhold his assent and direct the governor to return the bill if it is again not a money bill for reconsideration of the state legislature. But यहाँ पे there is a difference. यहाँ पे क्या difference है? हमने यहाँ पे क्या देखा था कि अगर बिल को रिटर्न किया है और बिल वापस आया प्रेसिडेंट के पास विद और विदाउट अमेंडमेंट, देन द प्रेसिडेंट हैज टू गिव द असेंट इन केस ऑफ पार्लियामेंट. बट इन केस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर it is not there. If the president has returned the bill, if the president has direct the governor to return the bill, and again the state legislature has done certain amendments, or let's say they didn't have done any amendment, तो अगेन प्रेसिडेंट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उसको असेंट दे. ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस है, याद रखना. द प्रेसिडेंट के ऊपर ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो उस बिल को जो कि वापस आया स्टेट लेजिस्लेचर से विद और विदाउट अमेंडमेंट वो उसको असेंट दें. ठीक है जी. So now let's move ahead to pardoning powers. Pardoning powers are enshrined in article number 72. ठीक है, article number 72, and there are 5 types of pardoning powers with the president of India. Number 1 is itself pardon. In this case, जो भी sentence है वो पूरी की पूरी खत्म. It removes both the sentences and the conviction and completely absolves the convict from all the sentences, all the punishments, all the guilty. ठीक है, जितना भी गिल्ट है उसका सब खत्म, पूरी माफी मिल गई. ठीक है, कोई सजा नहीं होगी. Alright, this is known as what? Pardon. Now commutation. It denotes the substitution of one form of punishment for a lighter form. ठीक है, मान लेते हैं कि किसी को डेथ सेंटेंस मिली है एंड वो गया अंडर आर्टिकल 72 टू द प्रेसिडेंट, एंड प्रेसिडेंट कम्यूट्स हिज और हर सेंटेंस. तो लेट्स से कि डेथ सेंटेंस है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दी गई, या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट में बदल दी गई. ठीक है, so this is basically commutation. This is basically substitution of one form of punishment to another. Moving ahead, remission. It implies reducing the period of sentence without changing its character. So if a person is undergoing a rigorous imprisonment of 14 years, so with the help of remission that person can take remission with president, and इसमें क्या होगा कि जो imprisonment का तरीका है, जो imprisonment की form है वही रहेगी. यानी if a person is having rigorous imprisonment of 14 years, so what will happen? The president will reduce this 14 years to let's say
5 ईयर्स कर दी या 10 ईयर्स कर दी या 7 ईयर्स कर दी, दैट डिपेंड्स ऑन केस टू केस। तो क्या होगा, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट तो रहेगी बट जो क्वांटम है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ओके, नाउ ऑफ कोर्स दिस कैनॉट बी डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। अब डेथ सेंटेंस का क्वांटम तो कैसे ही कम होगा भाई, मौत तो मौत है, ऐसा थोड़ी है कि मौत बड़ी और छोटी, ऐसा तो देयर इज नो नथिंग लाइक दैट। Respite, it denotes awarding a lesser sentence in place of one originally awarded due to some special fact. यहाँ पे याद रखना respite तब मिलता है when the person has certain special conditions, like for example let's say a woman who is a pregnant, ठीक है, उनको rigorous imprisonment दे दी गई, so with the due to this special fact that that woman is pregnant, or let's say a person is physically challenged और उसको rigorous imprisonment दे दी गई, so in that case ड्यू टू दिस स्पेशल फैक्टर उसकी जो सजा है उसमें उसको रिस्पाइट मिल जाएगा बाय प्रेसिडेंट, एंड जो फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी, मतलब फॉर्म चेंज नहीं होगी, लेसर सेंटेंस हो जाएगी। एंड फाइनली वी हैव रिप्राइव, इट इंप्लाइज अ स्टे ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सेंटेंस स्पेशली डेट ऑफ डेथ फॉर अ टेम्परेरी पीरियड। लेट्स से कि मेरे को फांसी की सजा हो गई है और मैं गया प्रेसिडेंट के पास कि मेरे को पार्डन चाहिए या कुछ और चाहिए, व्हाटएवर, पार्डन, मेरे को माफ़ी दे दो। तो उस समय प्रेसिडेंट साहब ने सोचा कि यार अभी तो नहीं देखना, अभी तो सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तो ठीक है तुम एक काम करो, हम तुम्हें रिप्राइव दे देते हैं, मतलब जो तुम्हारी डेथ सेंटेंस है उसको हम स्टे, उसके ऊपर स्टे लगा देते हैं। एंड इट्स पर्पज इज टू एनेबल द कन्विक्ट टू हैव टाइम टू सीक पार्डन और कम्यूटेशन फॉर द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिकली ये लॉयर्स का टैक्टिक्स का पार्ट भी होता है कभी कभी कि अगर पार्डन नहीं मिल रहा है तो वो लोग रिप्राइव ले लेते हैं और स्टे लग जाता है, एंड देन फिर अगेन दे कीप ऑन मूविंग द एप्लीकेशंस ऑफ पार्डन, जैसा कि हुआ है कई केसेस में भी। नाउ लास्ट इज द वीटो पावर्स। नहीं, वीटो पावर्स के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है। वीटो पावर्स क्या है? सी देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वीटो पावर्स विद द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 3 तरीके के वीटो पावर्स हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास। नंबर 1, एब्सोल्यूट वीटो। एब्सोल्यूट वीटो का क्या है कि बिल पेश हुआ और प्रेसिडेंट ने मना कर दिया, प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, विद द प्रेसिडेंट कैन विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल बाय यूजिंग दिस पावर विच इज नोन एज एब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, और ये जनरली तभी होता है जब लोकसभा खत्म होने वाली है, या फिर तब होता है जब बिल वॉज प्रेजेंटेड बाय अ प्राइवेट मेंबर अदर देन द मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट वर्क्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्रेसिडेंट, हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहेगा उसको करने के लिए वो करता ही है। ठीक है, सो इट जनरली हैपेंस इन द केस व्हेन द बिल इज passed by the parliament is a private member bill, or when the cabinet resigns before president could give his assent to the bill, and the new cabinet जो भी आई उसने बोला कि नहीं भाई आप इस बिल पे साइन मत करो। ठीक है, दिस इज एब्सोल्यूट वीटो। देन वी हैव सस्पेंसिव वीटो। The president uses his suspensive veto when he returns the bill to the parliament for reconsideration. But of course, the president cannot use this veto in case of money bill. वो इसका इस्तेमाल मनी बिल में नहीं कर सकते। And his suspensive power can be overridden by the repassage of the bill by the Indian Parliament. अभी हमने पढ़ा, if the Parliament return the bill with or without the amendment, then the president has to give his or her assent to that bill. Alright? ठीक है, ये होता है सस्पेंसिव वीटो। नाउ द मोस्ट पावरफुल वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीटो है। इसका एक बार यूज हो चुका है, ज्ञानी जैल सिंह ने इसका यूज किया था व्हाइल ही वाज प्रेसिडेंट। ज्ञानी जैल सिंह, ठीक है, इन्होंने यूज किया था इसका। सो पॉकेट वीटो में क्या होता है, द बिल, जो बिल है उसके ऊपर कोई एक्शन लिए बिना प्रेसिडेंट ने उसको छोड़ दिया। The bill is kept pending by the president for an indefinite period when he exercises his pocket veto. मतलब उसके पास बिल आया, ना तो उसने असेंट दी, ना ही उन्होंने विदहोल्ड किया अपना असेंट, ना ही मना किया और ना ही रिटर्न किया। ठीक है, उसको रख लिया अपने पास। ठीक है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट देयर इज नो स्पेसिफाइड पीरियड डिफाइंड हियर दैट within a specified period the president has to take certain actions with respect to a bill. कोई नहीं है, उनके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो असेंट दें। उन्होंने अपना पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर लिया और बिल को पेंडिंग कर दिया फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड। ही नाइदर रिजेक्ट्स द बिल नॉर रिटर्न्स द बिल फॉर रिकंसिडरेशन। ठीक है जी, सो दिस इज अ वेरी पावरफुल वीटो possessed by the president of India. Constitution does not give any time limit to president within which he has to act upon the bill. ठीक है जी, so this is known as what? Pocket veto. And last, ordinance making power under article number 123,
See, there are certain periods, certain times when Parliament is not in the session, and there are certain important subject on which the law has to be made at that point when Parliament is not in the session. So उस समय क्या करेगी सरकार? उस समय के लिए ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर होती है प्रेसिडेंट के पास. विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेंस, जो ऑर्डिनेंस है उसकी मदद से जो भी वो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है उसके ऊपर लॉ पास कर दिया जाता है. जैसे कि लास्ट ईयर फार्म एक्ट पास हुए थे विद द हेल्प ऑफ ऑर्डिनेंस. ठीक है. So the Constitution of India under Article 123 empowers the President to promulgate ordinance during the recess of Parliament. Okay, these ordinances have the same force and effect as an act of Parliament. But यहाँ पे एक बात याद रखना कि ऑर्डिनेंस को जब पार्लियामेंट वापस से सेशन में आएगा तो उसको इन द फॉर्म ऑफ बिल प्रेजेंट होएगा वो पार्लियामेंट में, एंड द सेम प्रोसेस विल रिपीट विद रिस्पेक्ट टू अ बिल जो होता है. Then there are certain limitations on this ordinance making power. The president can promulgate ordinance only when the parliament is not in session or either house is not in session. ठीक है, of course, क्योंकि president के पास real executive authority है ही नहीं. He can make ordinance only when he is satisfied that the circumstances exist that render it necessary for him to take immediate action. ठीक है. Every ordinance must be laid before both the house of the parliament when it resembles. उसको वापस पार्लियामेंट में पास होना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट ने एक ऑर्डिनेंस बना दिया तो वो एक्ट हो गया फॉर एवर. This is not the way. And if the ordinance is approved by both the houses, it becomes an act of the parliament. ठीक है. यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो है लास्ट वाले याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. That if the parliament takes no action at all, अगर पार्लियामेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया, then what will happen? The ordinance ceases to operate on expiry of 6 weeks from the reassembly of parliament, which means the parliament has to take certain actions on the ordinance before 6 weeks, before completion of 6 weeks of their reassembly. ठीक है. 6 हफ्ते में अगर वो कोई एक्शन नहीं लेंगे देन द ऑर्डिनेंस विल सीज टू ऑपरेट. ठीक है जी, ये 6 हफ्ते याद रखना, दिट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस वाज द सेशन गाइज. आई होप प्रेसिडेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें क्लियर हैं. स्टिल अगर आपके पास कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई विल सी यू ऑन मंडे विद अ न्यू चैप्टर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.